آج میں آپ کو اس ستارے کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گی۔ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش کا معلوم ہے تو آپ جان سکتے ہیں آپ کا ستارہ کون سا ہے۔ اگر نہیں معلوم تو آپ اپنے نام کے پہلے حرف سے جان سکتے ہیں کہ آپ کا ستارہ کون سا ہے۔ ستارہ قوس، نام کا پہلا حرف ف، موافق نگینہ فروزہ پخراج۔ تاریخ ولادت 23 نومبر سے لے کے 21 دسمبر تک۔ ستارہ قوس سے تعلق رکھنے والے افراد۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد موکلت اور رواداری سے مرسا نظر آتے ہیں۔ تمام قوس افراد خوش مزاج اور دیانتدار ہوتے ہیں۔ کم ہی افراد ہوتے ہیں جو تاہم یہ افراد خواتین کسی حد تک اساس برتری کا شکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بات شروع ہونے سے قبل ہی اس کا مفہوم نکال لیتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ قوس افراد کی بڑی تعداد ایماندار اور موکلیت پسند ہوتی ہے۔ چونکہ بہت زیادہ سچ بولتے ہیں اس لیے بیشتر لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں، اور یہ درست ہے کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ تاہم یہ لوگوں کی پرواہ کم ہی کرتے ہیں۔ جس کام کا بیڑا اٹھا لیں اسے حتی المکان تکمیل تک پہنچاتے ہیں، چونکہ جلد باز نہیں ہوتے، اس لیے تحمل سے اپنے اموار سر انجام دیتے ہیں۔ اموار سے مراد ہے کہ کام اپنے پورے کرتے ہیں۔ دیگر برجوں کی طرح قوس افراد بھی مثبت اور منفی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد مثبت سوچ کے حامل ہوتی ہے۔ اپنے تمام ملنے جلنے والے اور دوست احباب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، چونکہ خوبصورت باتوں اور لطائف کے فن سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اس لیے محفلوں اور تقاریب کی جان ہوتے ہیں۔ ان کی ایک خوبی انہیں ہر محفل اور تقریر کی جان بنا دیتی ہے، وہ ہے بزلہ سنجی کی عادت۔ ان کی مزید اور خوبصورت باتیں سن کر روتا ہوا انسان بھی ہنسنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، چونکہ ان کے مزاج میں مذاق کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں حسد، بغض، کینہ سے شدید نفرت ہوتی ہے۔ ذہانت ان افراد میں کوٹ کوٹ کے بڑی ہوتی ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اپنی قابلیت کا سکہ دوسروں پر مسلط کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اپنی کسی بھی ہنر کا کریڈٹ کسی بڑے انسان کو دے دیتے ہیں، حالانکہ مخاطب کی باتوں، احساسات، جذبات سے مکمل ادراک رکھتے ہیں۔ دیگر لوگوں کی گفتگو انتہائی توجہ سے سنتے ہیں اور دوران گفتگو اپنے سر کی ہبنش سے برابر یا احساس دلاتے رہتے ہیں، اور وہ ان کی باتوں میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے قوس افراد کے پاس لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ ان کا حلقہ احباب بھی کافی بڑا ہوتا ہے، اگرچہ صاف گوئی کی وجہ سے لوگ ان سے نالاں رہتے ہیں، مطلب کہ ناراض رہتے ہیں، تاہم وہ قوس افراد کی رفاقت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ چونکہ ذہین ہوتے ہیں اس لیے ہر بات کا دونوں پہلو سے جائزہ لیتے ہیں گہری اور پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔
इसी सोच विचार की बना पर इनकी राय अमूमन मनसफाना होती है। दूसरों के मुकाबले में ये लोग इनकी दूसरों के मुकाबले में लोग इनकी राय और फैसलों को मुकद्दम जानते हैं। आम तौर से खूब तर की तलाश में रहते हैं। इन्हें झूठ, फरेब, साजिश और दगाबाजी से नफरत होती है। इसके बरअक्स मामला फहम होते हैं, लेकिन बर्जकोस की एक कलील तादाद नापुख्ता जहन की मालक होती है। कलील तादाद से मराद है थोड़ी तादाद। वो मदरब और परेशान रहते हैं। उल्टी सीधी हरकतों और मनमानी का रवैयों में मुलव्वस होने की बना पर नशा वगैरह की लानत में मुब्तला हो जाते हैं। ताहम ऐसे लोगों की तादाद बराए नाम ही होती है। इन लोगों की बड़ी तादाद साफ जहन और खुले दिल के मालक होते हैं। कोस अफराद जसामत और हुलिये के लिहाज से दराज कद, चौड़ी पेशानी और मुनासब अकल के हामिल होते हैं। काहली की बजाय ये बहुत फर्तीले होते हैं। अमूमन अपने काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करते। बेहतरीन दिलनशीन और सहर अंगेज गुफ्तगू की वजह से लोग इनकी कुर्बत को पसंद करते हैं। अपनी सहर आफरी गुफ्तगू की वजह से मुखातब को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और यूं अपने शरीके गुफ्तगू से अपने नुक्ता नज़र को बाआसानी तस्लीम कराने में कामयाब रहते हैं। ये लोग सवाल जवाब के भी खूब माहिर होते हैं, लेकिन इनमें कोताहियाँ भी होती हैं। दौलत को खूब लुटाते हैं। अगर ये अपनी जाज़बियत और फजूल खर्ची पे काबू पा लें तो बहुत कामयाब रहेंगे। 17 कोस से तल्लक रखने वाली ख़वातीन कैसी होती हैं? कोस ख़वातीन शौक, चंचल और सादा होने के साथ ही शगुफ्ता मिजाजी में दूसरों को मशहूर करने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। का पहलू कदरे नुमाया होता है। इसीलिए लोगों की ज़्यादा तादाद इनकी रफ़ाकत को पसंद करती है। ये खेलों में मर्दों की तरह हिस्सा लेती हैं। इनकी बातों में तजाद नहीं होता। जो दिल में होता है उसे ज़बान से अदा कर देती हैं। मतलब कि ये ख़वातीन स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। ये घरेलू काम काज तक महदूद रहना पसंद नहीं करती। फितरतन आज़ादी पसंद होती हैं। इश्क मोहब्बत और रोमानी मामलों में दूसरी औरतों की तरह बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि बहुत सी बातों को तो हंसी में अड़ा देती हैं। इसी तरह शादी के सिलसिले में भी पेशो पेश से काम लेती हैं। शादी ब्याह के मामले में इन लड़कियों और औरतों को बहुत शर्म महसूस होती है। दीगर मामलों में खुशगफ्तार, खुश मिजाज और हंसमुख साबित होती हैं। तफरी, घूमने फिरने की शौकीन और शोबिज़ से इन्हें खासा लगाव होता है। रंग रोशनी, तकरीब और महफलों की तो शदाई होती हैं। मौका मिलने पर ऐसे प्रोग्रामों में भरपूर हिस्सा लेती हैं और खूब इंजॉय करती हैं। कोस ख़वातीन को अपनी ज़ात पर भरपूर एतमाद होता है। आज़ादी
पसंद होने के बावजूद बेशतर ख़वातीन मजबूत किरदार की हामिल होती हैं। इनकी साफ गोई अक्सर लोगों की नाराज़गी का बास होती है, क्योंकि इनकी आज़ाद ख्याली को देखते हुए लोग इन्हें फ्लर्ट भी समझने लगते हैं। ऐसी सूरत हाल इनके चेहरा यकवक्त ही तब्दील हो जाता है। ऐसी जब सूरत हाल होती है ना, इनका चेहरे का रंग मतलब कि उड़ जाता है। हंसी मजाक और तफरी की बजाय इनके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। ये ख़वातीन हमेशा खुद को मर्दों के हम असर समझती हैं और यही चीज़ गलतफहमी का बास बनती है। इनकी ज़िल्लत का सबसे खूबसूरत पहलू इनके अंदाज़े तक़ब है। इनकी इज्जत का सबसे खूबसूरत पहलू इनका से मुराद है कि इनके बोलने का अंदाज है, किसी को बुलाने का अंदाज है। गुफ्तगू में महक का पहलू, लताइफ सुनाने का मखसूस अंदाज और चेहरे पर बिखरी हुई शरारतें हंसी, जिससे मुखालफ गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है, ताहम आदत के बरक्स मजबूत किरदार रखती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट कर दें।